Okay, next let's determine the expression for conduction interval. So अब हम conduction interval की बात कर रहे हैं. So conduction interval is the interval for which the diode is conducting or the diode is forward biased. So according to our convention, जिस तरह से हमने कहा है कि हमने define करना है Vi को Vp cos omega t, और in other words ये peak के ऊपर हम कह रहे हैं कि we are defining the peak as t is equal to 0. So this is t is equal to 0. And since this difference is del t, so that means this t1 can be defined as minus del t. So we are saying that conduction begins at t1, and in terms of our, जब हमने रेफरेंस इस तरह से डिफाइन किया है कि t is equal to 0 हमने पीक पे डिफाइन किया है, तो t1 is equal to minus del t, where del t is the conduction interval, and conduction stops at t is equal to 0. So the conduction starts prior to this peak value, and the conduction stops at the peak of the cosine wave. So peak के पर conduction stop हो रही है और conduction begins हो रही है at t1 is equal to minus del t. And since we are using the ideal diode model, so during the conduction interval आपके पास जो equation है वो है V out is equal to Vi, which is equal to Vp cosine omega t. So because of the ideal diode model that we are using at this moment, V out is equal to Vi, since there is no drop, zero drop across the diode, and V out is equal to Vp cosine of omega t. So this is what we have. Let's evaluate this expression. This expression is valid from t1 till t is equal to 0. So minus del t से लेकर t is equal to 0 तक, यानी जितनी ड्यूरेशन के लिए आपकी कंडक्शन हो रही है डायोड की, उसके लिए एक्सप्रेशन वैलिड है. So we can evaluate it anywhere. Let's evaluate it at V out of t is equal to t1. So t is equal to t1 पे इसको हम evaluate कर लेते हैं. So देखिए ज़रा V out at t1 आपके पास क्या वैल्यू आ रही है. What is the value of V out at t is equal to t1? हाँ जी, यहाँ पर क्या वैल्यू है V out की at t is equal to t1? हाँ जी, ये देख सकते हैं ना. This should be Vp minus Vr. So we have Vp minus Vr is equal to Vp cos omega t1, and t1 is equal to minus del t. So this is what we have. And since cosine is an even function का क्या मतलब होता है कि अगर आप उसे वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप करें तो यू गेट द सेम थिंग. सो cosine is an even function, which means जब आप उसे वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप करते हैं तो इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, आपकी वैल्यू सारी सेम रहेंगी. सो फ्लिपिंग दिस वेव फॉर्म ऑन द वर्टिकल एक्सिस विल नॉट चेंज मच. सो दैट मीन्स, जिसको मैथमेटिकली हम कहते हैं cos of minus x is equal to cos of x. So we have Vp minus Vr is equal to Vp cos of omega del t. So this is the expression that we have. और इसमें आपके पास ये del t आ जाता है. Del t is the conduction interval, and जब आप conduction interval को omega के साथ multiply करें तो the resulting entity is called the conduction angle. So del t को हम conduction interval कहते हैं, conduction interval, and ओमेगा डेल टी को हम कहते हैं कंडक्शन एंगल. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव, जो कि हमने कंडक्शन इंटरवल की ड्यूरेशन में देखी है और उसको इवेल्यूएट किया है टी इज इक्वल टू t1 इक्वल टू माइनस डेल टी. कोसाइन की इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है बिकॉज कोसाइन इज एन इवन फंक्शन. सो वी गेट वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू वी पी कोसाइन ओमेगा डेल टी. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई. अब अगेन जिस तरह हम पहले भी कर रहे थे
तो we would like to see कि अगर ये argument small है तो we can further simplify using the series expansion of cosine. So let's take a look. क्या ये small expression है या ये large number है? देखिए ज़रा बताइए. Omega del t can be written as 2 pi f del t, or it can be written as 2 pi del t divided by capital T. So what do you think? ये del t divided by capital T, is it a small number or a large number? Smaller, sir. Smaller, right? Because by definition del t has to be small, otherwise आपको बहुत ज़्यादा ripple मिलेगा. So for the proper operation of this particular circuit, del t has to be set small. So del t is small relative to capital T. So that gives us an idea कि further simplification is possible. Cosine को आप further simplify कर सकते हैं. So cosine को आप series expansion की terms में भी लिख सकते हैं, जिसको याद रखना easy है. अगर आपको exponential of x आता हो, 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on. So cosine of x, इसमें से just even terms उठाएं. बताइए वन क्या even term है या odd term है? वन इस तरह आएगा ना आपके पास. तो वन को अगर आप फ्लिप कर दें वर्टिकल एक्सिस पे तो विल इट चेंज एनीथिंग और नॉट? हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? वन इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? अच्छा, इतना मुश्किल तो नहीं था यार ये बात. देखिए इवन है ना, बिकॉज इसको अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप कर देंगे तो इट वोंट चेंज एनीथिंग. सो वन इसमें इवन टर्म है, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इसमें इवन टर्म है. जस्ट यहाँ पर इवन टर्म्स लिखते हैं और उसके बाद आप ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस यहाँ पर लिखते हैं, प्लस माइनस. सो दिस इज योर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द कोसाइन. ये जस्ट मैं जहन में रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ. अगर आप और किसी तरीके से याद रख सकते हैं तो दैट्स ओके. सो आई लाइक दिस वे, क्योंकि ये इसके लिए जस्ट आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आपको जहन में रखना पड़ता है. बाकी आप जस्ट यहाँ से देख सकते हैं. ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसलिए है कि आपको पता है बाय यूलर्स आइडेंटिटी कोसाइन इज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे एक्स. कोसाइन इज नॉट रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स but exponential of jx and exponential of minus jx. So you get alternate positive negative signs. Similarly, since sine is an odd function, sine के केस में क्या होता है? sine के केस में देखिए, sine के केस में जब आप इसको flip करते हैं तो you don't get the same thing. You get the negative of, अगर आप इसको flip कर देंगे तो आप negative of the previous waveform आपको मिलेगी. इसको vertical axis पे आप flip करें, vertical axis पे अगर आप flip कर दें पूरी waveform को तो you get the negative of the given waveform. So sine is an odd function. So that means sine of minus x is equal to minus sine of x. Mathematically sine of minus x equal to minus sine of x का मतलब graphically ये है कि ये flip हो गया है. जब आप ये करेंगे, जब इसको flip करेंगे vertical axis पे तो you get the negative of the previous waveform. So that means it's an odd function. So sine is an odd function. So using the exponential of x, if you retain just the odd terms, so x is an odd term, x को flip करने से भी negative हो जाता है. x cube by 3 factorial is an odd term, x5 by 5 factorial is an odd term, and again alternate positive negative signs, positive negative positive negative. So that you get the series expansion for sine of x. So sine of x is x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial minus so on. तो ये जस्ट एक वे है इनकी सीरीज एक्सपेंशन को जहन में रखने का, ताकि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की अगर आपको सीरीज एक्सपेंशन आती है तो यू कैन रेडिली राइट डाउन द सीरीज एक्सपेंशंस फॉर कोसाइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स बेस्ड ऑन the fact that cosine is an even function and sine is an odd function. So let's return back to the current problem. Let's use this series expansion and the fact that del t by capital T is a small entity. So we can retain only the first two terms of cosine to simplify the given expression. So cosine
कि ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन है एंड सिंस यहाँ पर x इज इक्वल टू ओमेगा डेल टी विच इज़ स्मॉल नंबर विच मीन्स कि हम फोर्थ ऑर्डर टर्म को, सिक्स्थ ऑर्डर टर्म को, एट्थ ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट रिटेन द फर्स्ट टू टर्म्स. So as a consequence of retaining only the first two terms, we get cosine of omega del t is equal to 1 minus omega del t square divided by 2 factorial. So let's make this substitution here. इसको यहाँ पर substitute करते हैं. We get Vp 1 minus omega del t square divided by 2 factorial. 2 factorial आपको पता है कि 2 के इक्वल ही है. So this is equal to Vp minus Vr. और Vp minus Vp omega del t squared divided by 2 is equal to Vp minus Vr. So you can see that these Vp's will cancel out and we are left with Vp omega del t square divided by 2 is equal to Vr, or we have omega del t is equal to 2Vr divided by Vp whole under root. So this is what we get for the conduction angle. So the conduction angle omega del t is equal to 2Vr divided by Vp under root. Omega del t is equal to 2Vr divided by Vp whole under root. So ये आपके पास conduction angle आ गया. अब यहाँ से conduction interval भी readily निकाला जा सकता है. Conduction interval is just del t 1 by omega 2Vr divided by Vp under root. So this is your conduction interval. So ये आपके पास expressions आ गए. जी ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं डायोड का एवरेज करंट. सो रिकॉल करें कि हमने कहा था कि जब आपके स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है, इनिशियल ट्रांजिएंट फेज जो है गुजर गया है एंड AC स्टेडी स्टेट हैज़ बीन अचीव्ड. So afterwards, the charge supplied by the diode to the capacitor Q supplied must be equal to the charge lost by the capacitor during the discharge interval. और mathematically Q supplied must be equal to Q lost. Otherwise वो steady state waveform नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो भी फिर अब steady state achieve नहीं हुई. You have to wait for a few more cycles and then steady state जब achieve होगी then you can determine an expression for ID average. So for ID average, Q supplied must be equal to Q lost. So by definition, Q supplied can be written as IC average times del T. क्योंकि आप recall करें तो I is equal to dQ by dt. और चूंकि यहाँ पर एवरेज की हम बात कर रहे हैं इसलिए हमने जस्ट उसके साथ del T मल्टीप्लाई कर दिए. So Q supplied is IC average times del T and charge is being supplied during the conduction interval. So during the conduction interval, diode is playing a role, diode is forward biased and by KCL ID is equal to IC plus IL. So हम चूंकि averages की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कह देंगे ID average is equal to IC average plus IL, where IL is the load current. Or we can write it as IC average is equal to ID average minus IL. Now this expression can be substituted back to determine Q supplied. So Q supplied is equal to Q supplied equals ID average minus IL times del T, where del T is the conduction interval. So del T की वैल्यू जो भी हमने रिलेशन डिराइव की है conduction interval की, that can be utilized here and the value can be substituted so that Q supplied comes in terms of VR and VP. The charge lost by the capacitor during the discharge interval can also be given by definition as Q lost is equal to capacitance times the voltage change during the discharge interval. So जो voltage change हुई है initially discharge interval के start में आप recall करें तो voltage was VP and at the end of the discharge interval the voltage was VP minus VR. So the change in the voltage during the discharge interval is VR. So that's why यहाँ पर हमने VR substitute किए. So let's equate these two. Q supplied को Q lost के साथ हम equate करना चाहेंगे. So let's equate them together. So as a consequence you get the expression for ID average. So ID average minus IL
is equal to C times VR times omega times under root of Vp divided by 2VR. So this expression can be further simplified by substituting the value of VR जो कि already हमने determine की है. ये जो इस slide पे steps हैं ये straight forward हैं और ये हमने steps इसलिए किए हैं because हम इस फाइनल रिजल्ट को मैच करना चाह रहे थे टू द गिवन इक्वेशन इन द बुक. सो ये स्टेप्स हमने इसलिए किए हैं बिकॉज वीड लाइक टू मैच आवर फाइनल रिजल्ट विद द वन गिवन इन द बुक. सो इसमें जस्ट आपने सब्सटीट्यूशन की है ऑफ द रिपल वोल्टेज ऑलरेडी डिटर्मिन्ड. रिपल वोल्टेज इज इक्वल टू IL डिवाइडेड बाय FC. तो हमने यहाँ पर यूटिलाइज की है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी गेट ID एवरेज इज इक्वल टू IL 1 + pi अंडर रूट 2 VP divided by VR. So अभी जस्ट हम आप देख सकते हैं कि ID एवरेज हमने निकाला है. तो ID एवरेज इज एक्चुअली सिग्निफिकेंटली लार्ज relative to the load current, which should be the case because the conduction interval is quite small. So diode is conducting for a very small duration. So as a consequence, ID average will be significantly large relative to the load current. तो ये हमने ID एवरेज की एक्सप्रेशन निकाल ली. जी ये ठीक है. इसमें कोई क्वेश्चन हो? कि नेक्स्ट हम ID मैक्स की निकाल लेते हैं. सो रिकॉल करें कि दिस इज द पॉइंट t इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द पॉइंट एट विच द डायोड स्टॉप्स कंडक्टिंग. तो हमने ऑलरेडी डिटरमिन किया था कि जो स्टार्ट ऑफ द डिस्चार्ज इंटरवल है दैट हैपन्स एट द पीक ऑफ द इनपुट साइनसॉइड एंड द पीक ऑफ द इनपुट साइनसॉइड हैज बीन डिफाइंड एट एज t इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज t इज इक्वल टू -∆t. So this is the point at the very start of the conduction interval t is equal to -∆t at which the maximum diode current will flow. So ये हम निकालना चाहेंगे. So ये आपका कंडक्शन इंटरवल है जिसके स्टार्ट पे हमने इसको एवेल्यूएट करना है. So इसको कर लेते हैं. So ID is equal to IC plus IL. Why? Because हम कंडक्शन इंटरवल के दौरान कह रहे हैं. कंडक्शन इंटरवल के दौरान डायोड इज पार्ट ऑफ द सर्किट. डायोड इज कंडक्टिंग. डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड and is some current is flowing through the diode. So we can write ID is equal to C dVi by dt plus IL. So Vi आपके पास क्या है? Vi is equal to Vp cos omega t plus IL. So इसका डेरिवेटिव ले लें. जी बताइए ज़रा क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव. हाँ जी क्या आ जाएगा ये? माइनस Vp sin ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा Vp प्लस IL. ठीक है. सो अब आप देखिए यहाँ पर अब हमने t इज इक्वल टू -∆t पे हमने कहा है कि हमने इसको एवेल्यूएट करना है. दैट विल गिव अस ID max. So let's evaluate this expression. This expression is valid for the entire duration of the conduction interval. At the very start it's valid, at the very end it's valid. So we are going to evaluate this expression at t is equal to -∆t. So let's do this evaluation. So as we know that sine is an odd function, flipping it over the vertical axis will give us negative of the original waveform. So sine is an odd function, which means this sine of omega minus del t must be equal to minus sine of omega del t. So let's make this substitution here. तो ये minus sign is already present, minus sign के साथ cancel out हो जाएगा and we will get ID max is equal to C omega Vp sin omega del t plus IL. ठीक है जी आपके पास expression आ गई. So we have the expression but again we note that just like जिस तरह हमने previously किया था, we note that omega del t is quite small. So the argument of sine is a small entity. So 2 pi del t divided by capital T. This is a small entity. So further simplification is possible by utilizing the series expansion of sine. So again अगर आपको exponential of x की आती है series expansion, तो you can readily write the series expansion for a sine.
साइन की आप कैसे लिखेंगे, यू विल जस्ट रिटेन द ऑड टर्म्स जो कि x है, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है, एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल है, एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल है, and so on. And then you will retain positive, negative, positive, negative, positive, negative, alternate positive and negatives आपने रखने हैं. So this is the way to remember कि sin x की क्या सीरीज एक्सपेंशन है. आपने जस्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ x को जेन में रखना है, तो साइन और कोसाइन की आप रेडीली लिख सकते हैं. So this is what we have. So since we are saying कि हम कह रहे हैं कि omega del t is quite small, so that means कि we can just retain the first term and neglect the rest of the terms, which will lead to further simplification here. So sin omega del t में हमने इसको कहा it's very small, this is very small, and the rest of the terms are also very small. So we are going to substitute sin omega del t almost equal to omega del t into this expression to get the resulting simplified expression. So id max is equal to c omega vp omega del t plus il. इसके बाद के स्टेप्स हम कर रहे हैं बिकॉज आपके पास एक्सप्रेशन एक्चुअली आ गई है. इसके बाद के स्टेप्स हम कर रहे हैं जस्ट टू मैच आवर रिजल्ट्स विद द फाइनल एक्सप्रेशन गिवन इन द बुक. सो जो ओमेगा डेल टी हमने इनिशियली निकाला था और जो वी आर इनिशियली निकाला था उसको हमने जस्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है टू गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन. सो ये स्टेप्स आर गाइडेड बाय योर फाइनल एक्सप्रेशन इन द बुक. तो ये हमारा रिजल्ट मैच हो गया जो आपकी बुक में फाइनल एक्सप्रेशन है. So id max is equal to il 1 plus 2 pi under root 2 vp divided by vr. So हमने ये दो एक्सप्रेशन अभी निकाली हैं. एक id max निकाली है हमने द मैक्सिमम डायोड करंट, और दूसरा हमने id एवरेज निकाली है द एवरेज डायोड करंट. सो लेट्स हैव अ रफ एस्टिमेट कि इनमें क्या रिलेशन है. एग्जैक्ट तो हम तब निकालेंगे जब हमें प्रॉब्लम पता होगी. आगे अभी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं. So हम एग्जैक्ट निकाल लेंगे व्हेन वी आर गिवन विद VP, VR एंड IL. वी कैन डिटरमिन कि ID max क्या है, ID एवरेज क्या है, उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं. बट एट दिस स्टेज वी वुड लाइक टू हैव अ रफ अप्रोक्सीमेशन, अ रफ आइडिया कि इनका आपस में क्या रिलेशन है. सो इफ वी एज्यूम कि VR इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू VP, तो देन वी कैन से दैट कि यहाँ पर सेकेंड टर्म इज द डोमिनेटिंग वन रिलेटिव टू वन, सेकेंड टर्म इज वेरी लार्ज. So as a consequence, ID max can be approximated as just the second term, and ID average can be approximated as just this second term. So based on this idea, we roughly see that ID max is equal to 2 ID average. Actually exact values हम निकालेंगे अभी, आगे भी हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो exact values हमें नजर आ जाएंगी. ये जस्ट हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि रफली एक आइडिया हो जाए हमारे जहन में कि यार किस तरह की एक्सपेक्टेशन है. ID max और ID average क्या उससे बड़ा होता है. ID max ID एवरेज से बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन वो कितना बड़ा होता है. सो रफली हम कह रहे हैं कि वो तकरीबन ट्वाइस होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट. और अभी आगे हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो वी विल सी के एग्जैक्टली ये क्या वैल्यू आएगी. सो अभी तक जो हमने बात की है वो हमने हाफ वेव पीक रेक्टिफायर की बात की है. दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स भी हमने स्टडी किए थे. Similarly, they can be converted into peak rectifiers by just placing a capacitor across the resistor R. So any rectifier can be converted into a peak rectifier. We just have to place a capacitor across the resistor R. So resistor के साथ parallel में आपने just एक capacitor लगाना है, तो आपका given rectifier circuit जो है वो peak rectifier में convert हो जाएगा. So let's see कि half wave rectifier की जो भी हमने problem को build up की है उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं regarding the full wave rectifiers that we did study in the previous class. So let's see कि full wave rectifier और half wave rectifier में basic difference क्या है. So basic difference आपके पास इस किस्म का है कि full wave rectifier make use of both the swings. So वो just positive swing की corresponding output भी produce करता है और negative swing को भी invert करके output पे produce करता है. So the full wave rectifier utilize both the signal swings, and as a consequence आपको एक यूनिपोलर आउटपुट देता है जो कि नॉन जीरो होती है फॉर द नेगेटिव स्विंग एज वेल. सो इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो रिपीट हो रहा है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T/2 है इंस्टेड ऑफ कैपिटल T which is the time period for the input sinusoid, and for the half wave rectifier here the time period is capital T/2.
और इन अदर वर्ड्स द फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस। सो ये एक मेन डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रिपल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द इनपुट, which means the discharge period is capital T by 2। एग्जैक्टली डिस्चार्ज पीरियड आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके डायोड ने पीक पर ऑफ हो जाना है और अगली पीक से डेल टी पहले उसने ऑन होना है। दिस इज डेल टी एंड दिस इज द डिस्चार्ज इंटरवल विच एग्जैक्टली इज टी बाई टू माइनस डेल टी। सो इसको हम जस्ट यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं कि वो टी बाई टू है। हाफ वेव रेक्टिफायर में डिस्चार्ज पीरियड कितना था? हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में discharge period was capital T minus del T, which can be approximated as T. So we are saying कि full wave rectifier के केस में discharge period has reduced to almost half of the time of the discharge time for a half wave rectifier. तो ये पहली observation है जो हमने देखी है कि full wave rectifier के केस में the discharge period is T by 2 minus del T rather than T minus del T. So based on this observation, we would like to reuse the working that we have done for the half wave rectifier and we would like to apply that working here for the full wave rectifier. So उसमें आइडिया ये है कि जो पहले हमने एक्सप्रेशंस निकाली हैं VR के लिए और डेल टी के लिए, उसमें जस्ट इस कैपिटल T की जगह आप कैपिटल T by 2 सब्सटीट्यूट कर दें. So as a consequence, we will reuse, we will extend the equations developed for half wave rectifier to a full wave rectifier. So the basic idea here is just replace capital T by 2. तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में दो एक्सप्रेशन हमने निकाली थी. हमने कहा था डिस्चार्ज पीरियड इज ऑलमोस्ट कैपिटल T, VR is VP capital T by CR and omega del T, the conduction angle is under root 2 VR divided by VP. So just इसमें सब्सटीट्यूशन कर दें, इंस्टेड ऑफ कैपिटल T by 2 इधर सब्सटीट्यूट कर दें तो वी गेट एक्सप्रेशंस फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. सो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या चेंज आई? डिस्चार्ज पीरियड आपका कैपिटल T by 2 है और VR जो है उसमें आपने कैपिटल T की जगह T by 2 सब्सटीट्यूट कर दिया. कंडक्शन एंगल में कहीं कैपिटल T अपीयर नहीं हो रहा, so उसमें सेम एक्सप्रेशन रही एज बिफोर. So in this way we have extended our work which we have done for half wave rectifier to a full wave peak rectifier. However आपके पास जो एवरेज डायोड करंट है और मैक्सिमम डायोड करंट है उसके लिए इतनी सिंप्लीफाइड एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू रीडू द एनालिसिस. सो ये आपकी सिमिलर डेरिवेशन होगी जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले की है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. सो यू विल रिपीट द एंटायर प्रोसेस. सो फॉर एग्जांपल एवरेज के लिए, एवरेज डायोड करंट को निकालने के लिए आप इक्वेट करेंगे क्यू लॉस्ट को क्यू सप्लाइड के साथ, और सिमिलरली मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आप एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द कंडक्शन उस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे. एंड यू शुड बी एबल टू रीच एट दीज टू इक्वेशंस फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर. सो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वो उतनी ईजी एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं थी, हमें वो प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा जो कि सिमिलर है टू द वन वी हैव डन हेयर. सो ये हम क्लास में नहीं करेंगे, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. So you should be able to reach at these expressions. ID average is equal to this much and ID max is equal to given by this particular expression. Half wave rectifier के लिए हमने already ये expressions निकाली थी. So looking at these two equations for the same values of VP, frequency F, VP is the peak value of the input signal, F is the frequency of the input sinusoid, R is the load resistor, VR is the ripple voltage. You should be, one can note that the full wave rectifier requires only half the capacitor size relative to the half wave peak rectifier. So ये full wave rectifier का another advantage है कि full wave rectifier requires just half the size of the capacitor relative to the half wave peak rectifier. इस बात को आप alternately इस तरह भी current की terms में भी कह सकते हैं. This means the current in each diode in the full wave rectifier is approximately half that which flows in the diode of the half wave circuit. क्योंकि अगर आप कैपेसिटर का साइज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है. सो अगर आपने कैपेसिटर छोटा कर दिया तो उसका इन टर्म्स ऑफ करंट आपको फ़ायदा मिल रहा है. तो इन टर्म्स ऑफ करंट जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगी रिलेटिव टू हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगी relative to the full wave rectifier. So full wave rectifier के केस में current through the diode की requirements will be relatively lesser.
So that's an advantage of a full wave rectifier, which we do expect because full wave rectifier की output waveform is more energetic, should be able to drive the load easily. So finally हमने अभी तक ideal diodes की बात की है. Extending to the constant voltage drop model is quite easy. So what we need to do is above accuracy की above analysis की accuracy को improve करने के लिए we would like कि instead of ideal diodes हम working कर सकें using constant voltage drop model. So doing that is quite easy because we have already analyzed the half wave rectifier circuits and the full wave rectifier circuits, and we did notice कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आपको वन डायोड ड्रॉप मिलता है एट द आउटपुट. फुल वेव रेक्टिफायर के केस में अगर वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर बेस्ड है तो अगेन यू गेट वन डायोड ड्रॉप एट द आउटपुट. अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज पे बेस्ड है तो यू गेट टू ड्रॉप डाउन, आउटपुट इज टू डायोड ड्रॉप डाउन relative to the input signal. So what we're saying is कि instead of VP, जो above expressions में हमने VP यूज किए उसकी जगह आप सब्सटीट्यूशन कर देंगे VP minus VD for half wave rectifier and for full wave rectifier with center type transformer, and you will make the substitution VP minus 2VD for the bridge rectifier. That's all you need to do. बाकी तमाम expressions आपकी still valid रहेंगी. Just उन expressions में जहां पर भी VP आ रहा है उसकी जगह VP minus VD सब्सटीट्यूट कर दें for the half wave rectifier and for the full wave rectifier based on center type transformer. और VP को आप सब्सटीट्यूट कर दें VP minus 2VD for the bridge rectifier circuit. This is all you need to do to be able to apply the constant voltage drop model. You see कि इन किस्म के peak rectifiers में हमने ideal diode से start किया, but the extension to constant voltage drop model is quite easy and can be done readily by just making this substitution in the above expressions that we derived. Just substitute VP की जगह replace कर दें VP minus VD से. अगर आप half wave rectifier की बात कर रहे हैं या full wave with center type transformer rectifier की बात कर रहे हैं, और VP को replace कर दें VP minus 2VD से अगर आप bridge rectifier की बात कर रहे हैं. So once you are done with this step, you have now accommodated the drop across the diodes. तो constant voltage drop model आपने in a way यहाँ पर apply कर दी है by using this substitution. So let's take a look at an example and let's see कि ये जो भी हमने सारी बात develop की है for the peak rectifiers, half wave rectifiers, full wave rectifiers और constant voltage drop model की भी जो बात की है उसको किस तरीके से हम problem में include करेंगे. So let's take a look at this problem, exercise 423. So we have a bridge rectifier here. Bridge rectifier circuit है, filter capacitor C यूज कर रहे हैं, लोड रेजिस्टर R आप यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर जो डिलीवर कर रहा है, जो साइनसॉइड डिलीवर हो रहा है वो 12 वोल्ट RMS का है. सो सिंस इट्स अ साइनसॉइड, साइन वेव है 12 वोल्ट RMS की, तो इसकी पीक हम रेडीली निकाल सकते हैं. लेट मी कॉल दिस पीक एज कैपिटल VS. सो इट विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स √2 और कैन बी रिटन एज 16.97 वोल्ट्स. VD हमें बता दिया गया है कि वो 0.8 वोल्ट है, विच मीन्स कि हम आइडियल डायोड को लेकर नहीं चल रहे बल्कि एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं. लोड रेजिस्टर हमें बताया जा रहा है कि R इज 100 ohms. हमें कहा जा रहा है कि C की वैल्यू निकालें अगर रिपल वोल्टेज आपने इंश्योर करनी है ऑफ 1 वोल्ट पीक टू पीक. सो वो जो हमने जिस तरीके से रिपल डिफाइन की थी वो पीक टू पीक डिफाइन हमने की हुई थी. सो VR हमने डिफाइन इसी तरीके से किया था कि पीक टू पीक वो डेफिनेशन थी. सो दैट मीन्स कि VR इज 1 वोल्ट. सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस एंड वी आर सेइंग कि क्या हमें मिलेगा, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू आएगी. सो कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव की है कि VR इज इक्वल टू VP डिवाइडेड बाय 2FCR. सॉरी ये VR है. तो यहाँ पर देखें VR आपको गिवन है 1 वोल्ट है, 2 कांस्टेंट है, F आपको गिवन है, F इज 60 हर्ट्ज, R आपको गिवन है, R इज 100 ohms. तो कैपेसिटेंस निकाली जा सकती है अगर आपको VP पता हो. तो
बताइए जरा वीपी इस केस में हम क्या रखें? वीएस आपका अगर ये है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वीपी? जी वीपी क्या रखें इसमें, ये एक की चीज़ है, बाकी तो आपने एक्सप्रेशंस डिराइव की हुई हैं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज टू डिटरमिन द कैपेसिटेंस सी। वीपी क्या रखना चाहिए? दैट इज द ओनली की थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। जी बताइए वीपी को क्या रखा जाए इधर, इस प्रॉब्लम में वीपी को क्या रखना चाहिए हमें? VS-2 VD। एग्जैक्टली तो इसमें हमने बस जस्ट ये गौर करना है कि किस तरह के रेक्टिफायर की बात हो रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है जिसपे हमने ये कैपेसिटर प्लेस करना है। सो ब्रिज रेक्टिफायर टाइप का पीक रेक्टिफायर है हमारे पास। सो दिस शुड बी वीपी, ताकि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल जो है यहाँ पर अकोमोडेट किया जा सके। सो दिस इज 16.97 माइनस 2 टाइम्स 0.8। सो ये आपके पास यहाँ से वीपी आ जाती है। सो वीपी आ जाएगा 15.371। अब जो एक्सप्रेशन आपने जितने में डिराइव की थी उसमें दिस इज द वीपी दैट यू आर गोइंग टू यूज। सो अगर आप ये वीपी यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल जो है वो अकोमोडेट हो जाता है। सो पुटिंग दिस वीपी इन टू दिस एक्सप्रेशन, एफ की वैल्यू 60 हर्ट्ज पुट करें, आर 100 ohms पुट करें, वी आर 1 वोल्ट पुट करें, तो सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंड सी आपके पास आ जाएगा 1280.9 microfarads. So this will be the value of C that we have computed here. So ये अगर आप रखते हैं तो आपको रिपल 1 वोल्ट का मिल जाएगा, 1280.9 माइक्रोफैरड्स। सो ये वैल्यू ऑफ कैपेसिटर आ गई। लोड करंट, सिंपली हम जो पीक लोड करंट है वो वीपी बाय आर से आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.1537 एम्पियर्स। सो ये लोड पे करंट है। ऑब्वियसली जो अभी हम एवरेज करंट और मैक्सिमम करंट निकालेंगे वो इससे बड़े होने चाहिए। सो वो 0.1537 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोड करंट हमें पता है कि वो स्मॉलर आएगा, लेकिन जो डायोड का एवरेज करंट है वो सिंस इट इज ओनली ड्यूरिंग द कंडक्शन इंटरवल सो इट विल बी हायर, एंड सिमिलरली आई डी मैक्स विल बी फर्दर हायर। ओमेगा डेल टी भी हम निकाल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव की है, एंड इट इज़ वैलिड फॉर अ फुल वेव पीक रेक्टिफायर। एंड आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 20.667 डिग्रीज। तो अगर पीक रेक्टिफायर के बजाय आप जस्ट रेक्टिफायर की बात करते तो ओमेगा डेल टी उसमें क्या आता, क्लोज टू व्हाट आता? ये रिकॉल करें जो हमने पहले एग्जांपल्स की थी। तो ओमेगा डेल टी नॉर्मल रेक्टिफायर में क्लोज टू कितना आना चाहिए? आइडियल रेक्टिफायर में चले कितना आना चाहिए कंडक्शन एंगल जो है? पाया सर। पाई आता है राइट, 180 डिग्री। सो मैं इस पे ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपका जब पीक रेक्टिफायर आया है तो कंडक्शन एंगल है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड देन इट्स आइडियल वैल्यू ऑफ 180 डिग्रीज। सो इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एंड इट इज ओनली 20.667 degrees. So this is what will happen because of the peak rectifier. So peak rectifier में conduction angle will be significantly smaller relative to the ideal value of 180 degree for the normal rectifier. So peak rectifier will reduce this value because of the presence of the capacitor. सो आईडी एवरेज देखिए, आईडी एवरेज आप देख सकते हैं इज सिग्निफिकेंटली लार्ज रिलेटिव टू द पीक लोड करंट। पीक लोड करंट अभी हमने क्या निकाला है, 0.1537 एम्पियर्स, और आईडी एवरेज आपके पास उससे सिग्निफिकेंटली लार्ज है। दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज हमें पता है कि डायोड का जो कंडक्शन एंगल इट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल एंड रेस्ट ऑफ द होल ड्यूरेशन इज बीइंग डिराइव्ड बाय द कैपेसिटर। सो आईडी एवरेज हैज टू कॉम्पनसेट फॉर दैट। So ID average is significantly large relative to the load current of 0.1537 amperes. And ID max जो है वो इससे भी large होना चाहिए. So ID max is 2.7628 amperes. यहाँ पर रिकॉल करें जो हमने पहले बात की थी, जो हमने रफ आइडिया लगाया था कि ID max will be almost double relative to the ID average. So that is not entirely true, but that is a close, give us a good idea actually. ठीक है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, ये एग्जैक्टली उसका ट्वाइस नहीं है, लेकिन इट स्टिल क्लोज इनफ, यू गिव इट गिव्स यू अ रफ आइडिया कि व्हाट इज हैपनिंग। तो आईडी मैक्स जो है आपका रफली ट्वाइस है आईडी एवरेज के, तो वो एस्टिमेट इतना बुरा नहीं था यहाँ पर जब हमने एक्चुअल रिलेशंस को यूज करके रिलेशन ये वैल्यूज कंप्यूट की हैं। तो सो दिस इज द वैल्यू दैट मस्ट बी, जो भी आप डायोड चूज करें
वो उससे बड़ी वैल्यू का होना चाहिए, वो ये करंट जो है इजीली हैंडल कर ले। यू मस्ट इंश्योर दैट, अदरवाइज द डायोड विल बी डैमेज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अगर आप इस चीज़ की केयर नहीं करेंगे और आप डायोड एक ऐसा लगा देंगे जिसकी करंट रेटिंग इस नंबर से कम है, तो डायोड विल बी डैमेज्ड वेरी सून। थोड़ी देर आप पावर सप्लाई ऑन करेंगे और डायोड डैमेज हो जाएगा और आपके यार पता नहीं क्या हुआ है। सो दैट इज़ बिकॉज आपने केयर नहीं किया, आपने जितना करंट सर्किट में से गुजरना था मैक्सिमम, उसको आपने केटर फोर नहीं किया, आपने उससे बड़ी रेटिंग का डायोड चूज नहीं किया। सो यू मस्ट चूज अ डायोड with rating larger than this number। टिपिकली हम ट्वाइस का मार्जिन रख लेते हैं। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर 5 एम्पेयर या उससे बड़ा कोई डायोड अगर आपको इजीली मिल सके, सो दैट्स द बेटर चॉइस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पीक रेक्टिफायर। पीआईवी हमने ऑलरेडी रिकॉल करें, हमने लेक्चर के शुरू में कहा था कि इस किस्म के सर्किट की पीआईवी होगी वी एस माइनस वी डी। सो इस केस में वी एस ऑब्वियसली वो है जो कि आपकी साइनसॉइड का वी एस है, क्योंकि डायोड का ड्रॉप रिवर्स बायस में तो आना नहीं है ना। सो दिस इज 16.171 वोल्ट। सो दिस नंबर इंडिकेट्स कि आप जो डायोड देखें, जो डायोड आप चूज कर रहे हैं उसकी डेटा शीट खोलें और देखिए कि उसमें क्या ये रिवर्स वोल्टेज इससे बड़ी वो सस्टेन कर सकता है। सो अगर वो इससे बड़ी वोल्टेज सस्टेन कर सकता है देन इट विल बी ओके, अदरवाइज अगेन द डायोड विल गेट डैमेज्ड अगर आप पी ए बी का नहीं ख्याल करेंगे। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट entities that you must cater for while choosing a suitable diode for a particular rectifier application। So ID max and PIV आप सामने रखें कि मुझे इतनी चाहिए और उसके मुताबिक डेटा शीट खोल के डायोड को पिक एंड चूज करें। So choose a suitable diode that has a maximum diode rating greater than this number and PIV rating greater than this number। So अगर आप ये चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फिर आपका सर्किट ठीक काम करेगा। ठीक है जी, ये दिस कंप्लीट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टाइम ये हमारा आखिरी टॉपिक रह गया डायोड्स में से, लिमिटेड सर्किट्स। सो नेक्स्ट टाइम हम लिमिटेड सर्किट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो आज का काम हम यहीं एंड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं।